Hello everyone, this is Ankit Kumar and today we will discuss the concept of federalism. Okay? So first we will discuss what is federalism. So federalism is division of power between center and state. फेडरलिज्म मतलब संघवाद. संघवाद क्या है? तो संघवाद is division of power between center and the state. So यहाँ पर हम कहेंगे कि फेडरलिज्म promotes the principle of decentralization. Federalism promotes the principle of decentralization. Decentralization means taking away the power from the center and giving it in the hands of the state or giving it in the hands of the different constituent units of the center of the federation. So decentralization means taking away the power from the center and giving it in the hands of the state. के बीच में पावर को डिवाइड कर दे. सेंटर से पावर जब दूर जाता है उस सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं. सो फेडरलिज्म किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फेडरलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फीचर. सो एवरी डेमोक्रेसी मस्ट प्रैक्टिस द कांसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. Federalism promotes the division of power between center and the state. So what will happen after division of power between center and state? So federalism, the division of power between center and the state prevents the government from becoming authoritative government. मतलब सरकार को तानाशाह बनने से फेडरलिज्म संघवाद रोकता है. अगर when the power will be concentrated in a single hand, then it will ultimately lead into the authoritative government. एक तानाशाह सरकार बनने में ये मदद करेगा. अगर सारे पावर एक ही के हाथ में, एक इंडिविजुअल के हाथ में है, as in the case of monarchy. जब हम monarchy के केस में देखते हैं, king का सिस्टम में देखते हैं, सब देखते हैं power is concentrated in the hands of the monarch, in the hands of the king. So the king may become authoritative. It will ultimately leads into the dictatorship form of government. तो तानाशाह सरकार बनने में मदद करेगा. So जब पावर को हम डिवाइड कर देते हैं between the different organs and between the different levels of the government, so it prevents the government from becoming authoritative government. सरकार को तानाशाह बनने से रोकता है. So next अगर हम बात करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है, since we know that the Constitution of India is a borrowed constitution. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये जानते हैं कि हमारा जो संविधान है ये borrowed कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार लिया हुआ संविधान है. We adopted different provisions of the constitution of different worlds. So इस फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? So the concept of federalism has been adopted from Canada. So that is why Indian federalism is also known as Canadian federalism. It resembles with the form of the Canadian federalism. Canadian federalism के जैसा हमारा federalism है. So what is the similarity between Indian federalism and Canadian federalism? जब हम Indian federalism के concept को कनाडा से adopt किए हैं, so there must be some similarity between the concept of the Indian federalism and Canadian federalism. दोनों में कुछ समानता रहेगा. So समानता दोनों के बीच में क्या है कि इंडिया में भी पावर डिवाइड हो रहा है, कनाडा में भी पावर डिवाइड हो रहा है, बट सेंटर के पास पावर ज्यादा है. सेंटर अपने पास पावर ज्यादा रखा है. पावर को हम डिवाइड जरूर कर रहे हैं, सेंटर पावर को डिवाइड जरूर कर रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर ज्यादा है. और ये हमें रिफ्लेक्ट होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि सेंटर के पास पावर ज्यादा है. So that is why Indian federalism is centralizing in tendency. Indian federalism is federal in principle but unitary in spirit. फेडरलिज्म का उल्टा, फेडरलिज्म का एंटोनिम होगा यूनिटरी. फेडरलिज्म का एंटोनिम होगा यूनिटरी. यूनिटरी का मतलब होता है फेडरलिज्म में हम पावर को क्या कर रहे हैं, फेडरलिज्म में पावर को सेंटर से लेकर के और हम डिफरेंट यूनिट्स में पावर को डिवाइड कर रहे हैं. मतलब पावर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. ये फेडरलिज्म में कर रहे हैं, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. पावर को डिसेंट्रलाइज हम कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है यूनिटी. इसका उल्टा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट यूनिट से पावर को हम सेंटर की तरफ लाते हैं. डिफरेंट यूनिट से पावर को कहां लाएंगे, सेंटर की तरफ
So the power will be vested in the single hand. So this is called centralization. केंद्र की तरफ पावर जा रहा है सारा. So फेडरलिज्म को उल्टा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलता है कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट. इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट. सो इंडिया में भी हम वही करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पावर को डिवाइड तो जरूर कर रहा है, लेकिन सेंटर के पास पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टेट. अब कैसे कह सकते हैं कि हाउ सेंटर, सो दैट इज व्हाई इंडियन फेडरलिज्म इज नोन एज फेडरल इन प्रिंसिपल बट यूनिटरी इन स्पिरिट. So how we can say that the constitution of India is federal in principle but unitary in spirit. There must be some unitary features of the constitution. कुछ unitary feature रहा है हमारे constitution में, तभी हम इसको unitary in spirit कह रहे हैं. So when we will discuss the federal principle, जब हम federal principle को discuss करेंगे, जब हम देखेंगे कि how power is divided, how federalism is practiced in India, how power is divided in the constitution, the constitution में कैसे power divide किया जा रहा है, then we will get to know that center has more power as compared to the state. Okay, so हम देखेंगे कि जब हम कुछ यूनिटरी, हम फेडरल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करें, कुछ फेडरल प्रिंसिपल की बात हम करेंगे. सो व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. सो इंडियन फेडरलिज्म में फर्स्ट नंबर में हम कह सकते हैं कि देयर इज डिवीजन ऑफ पावर. देयर इज डिवीजन ऑफ पावर. पावर का बंटवारा होना चाहिए. एंड दिस डिवीजन ऑफ पावर इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो पावर का डिवीजन हो रहा है, इट इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन. The ultimate authority in India, the ultimate power in India lies in the hands of the constitution. So this division of power in Indian federalism is ensured by the constitution. एक constitution के द्वारा, संविधान के द्वारा हमारा पावर को डिवाइड कर दिया गया है. So हम देखेंगे कि पावर को डिवाइड कैसे करा गया. संविधान में कहाँ है, constitution में कहाँ है. So the seventh schedule of the constitution talks about deals with the division of power. Seventh schedule deals with the three list system. तीन लिस्ट सिस्टम से सेवेंथ शेड्यूल डील करता है. मींस की पावर इज डिवाइडेड बिटवीन थ्री कैटेगरीज एंड दीस थ्री कैटेगरीज आर फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट. मींस पावर इज डिवाइडेड इनटू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. अब इसमें हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर करने के पीछे मकसद क्या है. Why the power is divided between central, state and other different units of the federation? Power को क्यों डिवाइड किया गया है? So the sole reason behind the division of power is to avoid any kind of conflict between central and state. सेंटर और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसीलिए हम पावर का बंटवारा कर दिए हैं, पावर का डिवीजन कर दिए हैं. So first power is divided. Division of power ensures what? It ensures avoid of conflict between center and state. Second देखेंगे कि पावर जब डिवाइड हो रहा है तो ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट से रोक रहा है, ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट बनने से रोक रहा है, क्योंकि पावर डिवाइड कर दिए हैं हम. The power is not vested in single hand like monarch, like autocracy. तो इसमें हम देखेंगे कि तीन लिस्ट से डील करता है हमारा सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब तीन लिस्ट क्या है सर, तो ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और दूसरा कंकरेंट लिस्ट है. इसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं और इसमें कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं. अब यूनियन लिस्ट के अंदर में जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उस पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के होगा. Only the union government will have the power to legislate on the subject matters mentioned in the union list. तो इसमें कानून लॉ कौन बनाएगा, तो इसमें लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. Only central government have the power to legislate, to make laws on the subject mentioned in the union list. अब वैसे सब्जेक्ट मैटर्स जो स्टेट लिस्ट के अंदर में है, इस पे लॉ कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, सो इस पे only state government will have the power to legislate or the only state government will have the power to make laws on the subject mentioned in the state
एंड व्हाट अबाउट कंकरेंट लिस्ट? सो ऑल्सो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को अधिकार है लॉ बनाने का। बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स मेंशन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। अब बात तो वही आ गई भाई, फिर से हम घूम फिर करके वही आ गए। हम कोशिश कर रहे थे क्या? हम कोशिश कर रहे थे टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो लेजिस्लेशन को लेकर के, कानून टू मेक लॉ फॉर्मुलेशन को लेकर के, इसीलिए हम पावर का डिवीजन कर दिए। लेकिन बात यहाँ पर फिर वही आ गया, यहाँ पर फिर से हम सेंटर और स्टेट दोनों को अधिकार दे दिए लॉ बनाने का, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कहीं। सो इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट between center and between the law made by the center and the law made by the state, विवाद की परिस्थिति में अगर कोई विवाद हो जाता है सेंटर के द्वारा बनाया गया लॉ और स्टेट के द्वारा लॉ बनाया गया को लेकर के, सो इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है वो कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर हावी होगा। अब इस चीज से क्या कंक्लूजन निकल कर आया? इस चीज से कंक्लूजन ये निकल करके आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाया था कंकरेंट लिस्ट के अंदर में, वो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया गया लॉ साइडलाइन हो गया। यहाँ पर सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। और जहां भी सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो तब हम उसे क्या कहेंगे? हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहेंगे। सो दैट इज व्हाई थ्री लिस्ट के सिस्टम से हमको पता चलता है कि इंडिया फेडरल कंट्री तो है, पावर का डिवीजन तो कर रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर ज्यादा रखा है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फेडरल इन प्रिंसिपल बट यूनिटरी इन स्पिरिट। Federalism with centralizing tendency, more powers are vested in the hands of the central government. इसके अलावा वैसे सब्जेक्ट मैटर्स जो ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना ही स्टेट लिस्ट में है और ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, वो कहाँ जाएगा? So it comes under the residuary list. It comes under the residuary list. और रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे उस पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सिर्फ किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स मेंशन्ड इन द रेसिडुअरी लिस्ट। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में भी हम देखें कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। रेसिडुअरी लिस्ट में भी हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं मिला लॉ बनाने का। अधिकार किसे मिला? तो अधिकार मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ भी हमको पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। सो रेसिडुअरी लिस्ट इज आल्सो एन यूनिटरी फीचर। So that is why these all feature concurrent list and residuary list reflects the unitary centralizing